सभी 4 दिन की हैं चांदनी, ये रियासतें ये वजारतें, मुझे उस फ़कीर की शान दे कि ज़माना जिसकी मिसाल दे। ख़वातीन व हज़रात, हमारे लिए फ़ख्र और मसरत का मकाम है कि हमारे बीच एक आला शख्सियत के मालिक, फ़कीराना अंदाज़ और जिनकी खिदमत से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ़ है, मौजूद हैं। उन्हें किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन रवायात को कायम रखते हुए मैं हाज़रीन महफ़िल को थोड़ा सा उनका तारुफ़ कराता चलूँ। डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद, चाइल्डहुड नेम Salim, is an Indian politician, physiologist and academic whose primary interests are in political and social sciences. He was a senior fellow at Center for Study of Developing Societies, CSDS, Delhi since 2004. He is a former member of University Grant Commission, UGC, and National Advisory Council, NAC, on Right to Education Act. He was a member of the National Executive of Aam Aadmi Party until 2015. He is a founding member of Swaraj Abhiyan and Jai Kisan, and national president of the political party newly formed called Swaraj India. He was awarded in 2008 Malcolm Adishesya Award for Development Studies. In 2009, he was awarded as Global South Solidarity Award by International Political Science Association in recognition of outstanding work on the politics of developing world. He has published many articles and books. He was an editor and advisor for various publications such as European Journal of Political Research, Samayik Varta, and the Hindi language social science anthologies titled Lok Chintan and Lok Chintak Granthmala. He has wrote several books: State of Democracy in South Asia 2008, co-authored and co-edited with Sandeep Shastri and K.C. Suri; Electoral Politics in Indian States 2009, Democracy in National Societies 2010, and we all are aware, those who are studying in the NCERT book, he wrote Democratic Politics 1 and Democratic Politics 2, which is still in the NCERT book. बाद मुद्दत की ये घड़ी आई, आप आए तो ज़िंदगी आई। मैं ज़हमत देता हूँ अपने मेहमान खुसूसी आली जनाब डॉक्टर योगेंद्र साहब को कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख्यालात से हमें रोशनास करें। मोहतरम डॉक्टर योगेंद्र यादव साहब। शुक्रिया करीम साहब। सदर जनाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान साहब, मुकर्रम ख़ान साहब, नदीम तरीन जी, परवेज़ अख्तरी साहब, इफ्तिकार आलम साहब, my friend Fahim Bhai, who I can't see quite here but he must be around, who brought me here, and my most gracious host Shariq Samsi Saab. Assalamu alaikum, namaste. It's an honor and delight to be here on this very, very special occasion, in this very special gathering. I haven't had the fortune of studying at AMU, but I've had the privilege of speaking to a gathering of students there in that beautiful Kennedy Hall this very year. And I have had one occasion at least, when I was a member of the University Grants Commission, of being able to do some small thing that I could do at that point to support the schools which are part of the university, which were in a very bad shape.
and the University Grants Commission could do something about it, and it was my fortune and pleasure that I could be of some little use there. जब मैं यहाँ आने के लिए अपने घर से निकल रहा था तो मेरी बीवी ने कहा कि पता नहीं तुम्हें लोग ऐसे डिनर के लिए क्यों बुलाते हैं, इट्स कंप्लीटली वेस्टेड ऑन यू। उनका इशारा मेरे खाने की तरफ था। मैं वेजिटेरियन हूं और वो बंगाली हैं, सब कुछ खाती हैं। मैं बहुत कम खाता हूं और वो फूडी हैं, तो वो मुझ पे तंज कसती रहती हैं कि इट्स कंप्लीटली इनवाइटिंग यू टू ए डिनर इज ए वेस्ट ऑफ डिनर। मैं सोचने लगा कि चलिए डिनर तक हो तो गनीमत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि द टॉक इज ऑल्सो वेस्टेड ऑन द ऑडियंस, क्योंकि जैसे मैं वेजिटेरियन खाता हूं वैसा ही मैं वेजिटेरियन बोलता भी हूं। ना शेरो शायरी, ना कोई फड़कती हुई बात, ना चुटकुले। एक सीधी सादी बात जो समझ आती है, बिना लाग लपेट के अपनी बात साफ कह देता हूं मैं। और कई बार मैं सोचता हूं कि क्या ये ओकेजन के लिए सही है। कई बार मुझे लगता है कि जहां बहुत बढ़िया खूबसूरत बातें कहनी चाहिए उसमें कुछ तकलीफ नुमा, कुछ कड़वी बातें बहुत सीधे सपाट तरीके से जब मैं बोल देता हूं तो मुझे खुद अक्सर डाउट रहता है कि इज दैट अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन। बट देन आई थॉट ऑफ द ओकेजन, इट इज 199 years from the birth of सर सैयद अहमद खान। और अगर हम लोगों की जुबान में बोलें, हमारे ये नहीं कहते कि बच्चा 4 साल का हो गया है, मां कहती है उसको 5वां साल लग गया। सो उस लिहाज से कहें तो 200वां साल लग गया। इट्स द बिगिनिंग ऑफ द बाइसेंटेनरी सेलिब्रेशन। इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन एंड आई थिंक ऑफ व्हाट इज इट दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस ओकेजन। हमारे सामने 5 बच्चे आए, एक बिटिया भी आई, बहुत खूबसूरत बातें कही उन लोगों ने। उस वक्त हम लोगों का ध्यान दूसरी चीजों में था, बच्चे बहुत प्यारी बातें कह रहे थे। What is it that we recall? What is it that we take away from सर सैयद? मैं एक बात कहता हूं, बुरी लगे तो माफ कीजिएगा, महात्मा गांधी गुजरात के बनिए की प्रॉपर्टी नहीं है, जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के पंडित की प्रॉपर्टी नहीं है, उसी तरह से सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तान के मुसलमान की प्रॉपर्टी नहीं है। वो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है उतनी जितनी की आपकी है। इन लोगों ने, मैं देखता हूं, राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान, एक चीज मुझे कॉमन लगती है, व्हाट ए वास्ट रेंज ऑफ थिंग्स दे थॉट एंड रोट अबाउट। आज तो इसके बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं है कि कोई एक शख्स रिलीजन पे लिखेगा, लॉ पे लिखेगा, पॉलिटिक्स पे लिखेगा, न जाने किन किन, साइंस पे लिखेगा। ऐसी बातें आप राम मोहन रॉय से उम्मीद कर सकते थे, ऐसी बातें आप सर सैयद अहमद खान से उम्मीद कर सकते थे। अब वो जमाना नहीं रहा, कुछ ज्यादा हम इतने स्पेशलाइज्ड हो गए हैं कि हम जिंदगी को अपनी टोटलिटी में देख नहीं सकते, ये लोग देख सकते हैं। और इन लोगों ने हमें वो चीज बख्शी है, बाकी छोटी बातें भूल जाइए। पता नहीं क्यों हम इतने बड़े लोगों की जिंदगी की छोटी बातों पे बहुत उलझे रहते हैं। 1857 को उन्होंने कैसे देखा, ये जो बंगाली नेशनलिज्म आ रहा था उस पर उनके क्या ख्यालात थे, हिंदी और उर्दू में क्या झगड़ा था 19th सेंचुरी में, मेरे लिए सब बहुत छोटी बातें हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने एक नई चीज को इनॉग्रेट किया जिसको आज भी हम नहीं पहचान रहे हैं। मैं आज भी दावा करता हूं कि हम नहीं पहचानते हैं, और वो है बहुत ही खुसूसी इंडियन मॉडर्निटी को इन्होंने इनॉग्रेट किया।
which is as Indian as it is modern, बहुत ही देसी मॉडर्निटी। आप वो वक्त इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, 1857 हुआ था, उस वक्त क्या मेंटेलिटी थी उस वक्त देश में। आप आज मैं और आप बैठ के उसको पूरी तरह से इमेजिन नहीं कर सकते हैं। 1857 के वक्त पूरे देश का क्या माहौल था और खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी की उस वक्त क्या स्थिति थी। बहुत आसान रास्ते थे, आसान रास्ते थे पीछे देखने के। जब भी कोई खौफ आता है, जब भी कोई बड़ी बात होती है, इंसान की पहली फितरत है he did not think of an immediate political solution to a political crisis. 1857 was a political crisis for the Indian Muslims in particular and India in general. He thought of a long-term answer, a cultural and educational and philosophic answer to an immediate political crisis. He had the courage. आप समझिए, पॉलिटिकल क्राइसिस में लोग समझते हैं ये सेटिंग कर दो, वो कर दो, इसको डाउन कर दो, इसको अप कर दो। उन्होंने कहा नहीं, इसकी रूट्स इस चीज में है कि हम ये जो नई तालीम आ रही है, ये जो नई नॉलेज आ रही है, हम इससे रिलेट नहीं कर पा रहे, ये करने की जरूरत है। ही थॉट ऑफ समथिंग डीप, ही थॉट ऑफ समथिंग लॉन्ग टर्म। इनफैक्ट एक जगह पे वो कहते हैं कि लोग समझेंगे कि मैं शेख चिल्ली हूं, ऐसा वो खुद कहते हैं। जब एएमयू को फाउंड कर रहे थे, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल को जब वो कर रहे थे, कॉलेज की स्थापना कर रहे थे, तो वो खुद कहते हैं कि हो सकता है लोग समझे मैं शेख चिल्ली हूं, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है। अगर वो शख्स उस दिन शेख चिल्ली होने का रिस्क न लेता तो आज इस कमरे में हम सब लोग बैठे ना हों। मैं ये सब बातें सर सैयद की तारीफ में नहीं कह रहा हूं, ये सब बातें मैं आज आपके और मेरे लिए कह रहा हूं। जो लोग गुजर गए उनकी तारीफ करना एक आसान और अच्छा काम है, और पता नहीं क्यों हम हिंदुस्तानियों को इसमें बहुत मजा आता है। और कई बार मुझे लगता है कि गुजरे हुए लोगों की तारीफ कर करके हम अपने आज की चैलेंज से बचना चाहते हैं। इसलिए जिसमें ये हिम्मत होती है कि आके कहे कि नहीं सर सैयद ने ये सोचा था लेकिन आज मैं अलग सोचता हूं, वो सचमुच सर सैयद के रास्ते पे चल रहा है, जिसमें ये हिम्मत होती है। आज हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम इसको एनकरेज नहीं करते। इसलिए इस मौके का फायदा उठा के मैं उस हालात पे चंद बात कहना चाहता हूं। वो सवाल जो आज से 150 साल पहले सर सैयद का सवाल था और आज 150 साल बाद आपका और मेरा सवाल, दैट इज द प्रेडिकामेंट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। इट्स ए रियल क्वेश्चन, यू एंड आई नो दैट इट्स ए क्वेश्चन। आज लंच पे मैं बैठा था शारिक साहब के घर और एक दोस्त ने कहा, जिस दिन ट्रंप अमेरिका में जीता मुझे याद आ गया कि आज से 2.5 साल पहले मुझे कैसा महसूस हुआ था। वी आर स्पीकिंग ऑफ ए रियल डिलेमा, वी आर स्पीकिंग ऑफ ए रियल कंडीशन। लेट अस नॉट रन अवे फ्रॉम इट, लेट्स कन्फ्रंट इट। कई बार हम इसे कहते हैं इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ द और क्वेश्चन ऑफ द इंडियन माइनॉरिटीज। आई डोंट थिंक इट्स ए गुड डिस्क्रिप्शन।
हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज अलग अलग तरह की हैं। जैन तो अपने आप को माइनॉरिटी मानते नहीं और कोई भी उनको माइनॉरिटी नहीं मानता, सिर्फ हिंदुस्तान का कानून मानता है, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखा। पारसी प्रिविलेज माइनॉरिटी है हिंदुस्तान की। सिख माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी होने के दंश से गुजरे हैं वो, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री कम से कम उनकी पगड़ी पहनने को तैयार है। कई और टोपियां पहनने को तैयार नहीं है वो, लेकिन वो टोपी पहनने को तैयार है। तो उनकी वो हालात नहीं है, हालांकि वो उस दंश से गुजरे हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए। क्रिश्चियंस ने डिस्क्रिमिनेशन देखा, एक रिलीजियस माइनॉरिटी होने का दंश वक्त बेवक्त उन्हें भी गुजरना पड़ता है, लेकिन एजुकेशनली और प्रोफेशनली वो हिंदुस्तान की एवरेज से पीछे नहीं, आगे चल रहे हैं। द कंडीशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स इज यूनिक। They are not only a religious minority, like Sikhs are, like Christians are. They are also a disadvantaged community, like OBCs are. They are also a discriminated community, like Dalits are. It is the overlap of these three. It is the overlap of these three things put together. Being a religious minority, being a disadvantaged community in terms of education and other facilities, and being a discriminated community, which makes for this unique paradox and difficulty, which is the predicament of the Indian Muslims. और आप मत समझिएगा कि ये बात मैं सिर्फ यहां बोल रहा हूं, ये बात कई साल से मैं बोलता रहा हूं। माइनॉरिटीज एक यूफेमिज्म है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें। द रियल क्वेश्चन इज दैट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, विच इज ए यूनिक क्वेश्चन फॉर विच वी हैव टू थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन। ऑल ऑफ अस हैव टू थिंक ऑफ द वे आउट। पिछले 2.5 साल में ये सिचुएशन जाहिर है बहुत बिगड़ी है, मुझे यहां गिनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे वहां से दूर बैठे हैं, लेकिन खबर तो आपको भी आती है, फोन तो आपको भी आते होंगे, महसूस आप भी अपने दिल में करते होंगे। कुछ चीजें उसमें विजिबल हैं, चाहे वो अखलाक का सवाल आ जाए। अब सरकार आपके फ्रिज में भी झांक के देखेगी कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। सरकार आपकी डाइनिंग टेबल पे भी पहुंच जाएगी। कल हमारे कोई जज साहिबान ने कह दिया कि आपको सिनेमा के अंदर भी क्या करना होगा। मगर ये विजिबल है, ये चीजें आंख से दिख रही हैं। असली चीज वो है जो आंख से दिख नहीं रही, और वो है कि पहली बार आजाद हिंदुस्तान में 2 तरह की सिटीजनशिप बन रही है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। और आज हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से को बताया जा रहा है कि फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप नहीं है। हाँ, आप यहां रह लीजिए, बर्दाश्त कर लेंगे आपको, लेकिन दूसरे पायदान पे, जहां पे हो वहीं पे रहो। पहली बार आजाद हिंदुस्तान में उस बात को कहा जा रहा है जिसे पहले दबे छुपे बोला जाता था, वो ये कि कुछ लोग इस देश के मकान मालिक हैं और बाकी लोग किराएदार हैं। ये जो जहनियत है, कुछ लोग मकान मालिक और बाकी किराएदार, ये आज इस क्राइसिस की जड़ में है। देयर इज ए विजिबल क्राइसिस एंड देयर इज एन इनविजिबल क्राइसिस। आज अगर मैं किसी पुलिस थाने में जाऊं, अपना नाम योगेंद्र यादव बताऊं तो मुझे एक तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर मैं अपना नाम जावेद बता दूं, अपना नाम सलीम बता दूं, तो उसी मुझे एक दूसरा ट्रीटमेंट मिलेगा। ये जो सिचुएशन बन रही है, इस क्राइसिस को हम कैसे रेस्पॉन्ड करें, ये आज सबसे बड़ी चैलेंज है। और मुझे लगा मैं चंद 5-7 मिनट जो और बोलना है मुझे, मैं सिर्फ इसके बारे में बोलना चाहता हूँ
क्योंकि इस सवाल से बच के भागने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम यहां बात नहीं करेंगे तो हम अपने ड्राइंग रूम में इसकी बात करेंगे, ड्राइंग रूम में बात नहीं करेंगे तो सोते हुए अपने सपनों में इसके बारे में सोचेंगे। जितना अंदर घुस के सोचेंगे उतना ही ज्यादा खतरनाक है। खुल के बात करना कहीं बेहतर है। देयर इज ए सेंस ऑफ सीज। जब आप चारों तरफ से घिर जाते हैं तो एक सीज होता है, आप घेराबंदी हो गई है एक तरह से। एंड अनफॉर्चुनेटली along with a siege comes a siege mentality। घिरे हुए होने का जो एहसास है, वो जो एक मेंटेलिटी क्रिएट करता है, वो उतना ही खतरनाक है जितना कि घेराबंदी अपने आप है। और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ वक्त से इस क्राइसिस में जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो उसी सीज मेंटेलिटी से आ रहा है। जब घबराहट में और डर में और घिरे हुए होने का एहसास लेके हम रेस्पॉन्ड करते हैं तो हम अपनी सिचुएशन को पहले से ही ज्यादा खराब बना लेते हैं। कुछ वैसा ही इस वक्त हो रहा है।